Hello students, today we will start with our topic colligative properties. You all know that vapor pressure of a solution decreases when non-volatile solute is added to volatile solvent. तो जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होने वाला है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो इसी वेपर प्रेशर जो कम हो रहा है डिक्रीज़ इन वेपर प्रेशर से वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं and those properties are known as colligative properties. So basic definition of colligative properties is that those properties which depends only on the number of particles of solute and not on their nature, जो सिर्फ उनके नंबर पे डिपेंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा कम हो जाएगा और अगर कम होंगे तो फिर उतना कम नहीं होगा, बट कम तो होगा जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे। सो देयर आर 4 colligative properties. We will study those colligative properties one by one. So first you give the heading colligative properties. Colligative properties, as I have told you, what are the colligative properties? Those properties of dilute solution which depends only on number of particles of solute and not on their nature are known as colligative properties. You can write it down. So वो properties जो कि सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही हैं वो होंगी हमारे पास colligative properties. We will study 4 colligative properties. First is relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Second is osmotic pressure. Third one is depression in freezing point. And fourth is elevation in boiling point. इट मीन्स वेपर प्रेशर की रिलेटिव लोअरिंग हमने स्टडी करनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें एलिवेशन होगा. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. So firstly we will start, give the heading, first colligative property, relative lowering of vapor pressure. Now students, you all know कि जब हम volatile solvent में non volatile solute ऐड करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा. सो इट्स वेपर प्रेशर विल डिक्रीज. इज वाई इट विल डिक्रीज? बिकॉज
द परसेंटेज सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय सॉल्वेंट डिक्रीजेस। पहले जितना सरफेस एरिया सॉल्वेंट ने ऑक्यूपाई किया हुआ था अभी वो कम होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो कुछ सरफेस एरिया वो भी ऑक्यूपाई करेगा। तो पहले जितना इवेपोरेशन हो रहा था अभी उतना इवेपोरेशन नहीं होने वाला, तो इवेपोरेशन कम हो रहा है। इवेपोरेशन कम हो रहा है इसका मतलब वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, क्योंकि वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स ही नहीं जाएंगे तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो गया। सो दिस इज द बेसिक concept behind this property. So you can write down that when non-volatile solute is added to volatile solvent, its vapor pressure decreases because percentage surface area occupied by solvent decreases, which results in less rate of evaporation. अभी evaporation भी क्या होगा, कम हो गया, एंड अगर evaporation कम होगा तो फिर वेपर प्रेशर भी कम होगा, lowering of वेपर प्रेशर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अभी इसमें भी ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग करेंगे, दैट all colligative properties will be of dilute solution which are supposed to behaving as ideal solution। वो सभी properties actual में हम लोग dilute solution की ही study करेंगे। Students, as you know that vapor pressure, partial vapor pressure of, let's say if A is solvent and B is solute, एंड सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, जो कि हम ऐड कर रहे हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में। सो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये किसके इक्वल होता था, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, यही होता था हमारे पास। एंड इफ यू हैव रिमेंबर दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ mole fraction of solvent? This is equal to 1 minus mole fraction of solute. So put this value in this expression. So partial vapor pressure of solvent multiply 1 minus this, and when you will open the bracket this will become P naught A into this. So this is the case. As you all know दैट जो भी सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल होगा वो वेपर फेज में इजीली जाएगा ही नहीं, इट मीन्स उसका पार्शियल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू 0। सो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, जितना पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट का, विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जो PB है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट उसको हम क्या ले रहे हैं, 0। सो टोटल वेपर प्रेशर इसी के ही बराबर होगा हमारे पास। सो we can replace this with the total pressure। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया। आपके इंफॉर्मेशन के लिए याद दिला दूं, जो टोटल प्रेशर था वो किसके इक्वल था, PA प्लस PB के, और PA इस P नॉट एक्स है एंड PB वॉज P नॉट बी एक्स बी, बट सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है तो ये
0 हो जाएगा. दिस वॉज जस्ट फॉर योर प्रीवियस इंफॉर्मेशन. तो अभी टोटल प्रेशर जो है वो हमारा इसके इक्वल आ गया. नाउ यू कैन सी, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आता हूँ, सो दिस विल बिकम दिस एंड P नॉट ए माइनस P. ये राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो गया. सो दिस फैक्टर विल शो lowering in vapor pressure. as you can see, ये जो है ये प्योर स्टेट में है एंड दिस इज द वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन में है जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो ये इससे कम है. दिस इज lowering in vapor pressure. you can write here that P naught A minus P is showing lowering in vapor pressure. And when you divide this with this, जब ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस दिस अपॉन, तब ये क्या बन जाएगा, relative lowering in vapor pressure. this is relative lowering in vapor pressure. अब हम इसी एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को नाउ वी विल modify this expression. I think you have noted it down from above. I am rubbing that portion down. Now you know that if the solution is dilute, अगर solution dilute है तो जो number of moles of solvent plus number of moles of solute वो फिर ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के, बिकॉज सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है. एक्चुअल में जो ये है हमारे पास, दिस इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. अभी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन वो तो हमारे पास सिर्फ किसके इक्वल आ गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सो दिस ऑल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज द वैल्यू ऑफ mole fraction. So you can replace this with this, then there will be another expression for relative lowering in vapor pressure. तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A. दिस इज अनदर एक्सप्रेशन. नाउ वी further modify this expression. This is what, number of moles of solute. Number of moles of solute आपको कैसे पता लगता है, given weight of solute upon molecular mass of solute, WB upon MB. Similarly, number of moles of solvent, you will get weight of solvent upon molecular mass of solvent. Put these values here. NB की वैल्यू जब आप डालोगे, Na का क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो NB की वैल्यू जब आप ये पुट करोगे, नाउ आई थिंक आई शुड रब दिस वन डाउन. सो व्हेन यू पुट NB which is WB by MB upon Na is what, WA by MA. तो MB will come in denominator, MA will go in numerator. So this will become WB by WA into MB into MA. This will be the case. So we can replace this with this. So WB into MA, this is weight of solute into molecular mass of solvent upon weight of solvent into molecular mass of solute. This will be equal to relative lowering of vapor pressure.
So these are the expression. First expression is this. जब हमने मोल फ्रैक्शन जो है सोल्यूट की वो इक्वल की है, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स के साथ उसी को दिखाया, फिर हमने वेट के साथ दिखाया. सो दिस वाज आवर फर्स्ट colligative property, relative lowering of vapor pressure. I think relative lowering of vapor pressure is now clear to you. Let us explore that knowledge by solving this numerical statement. Read करते हैं. Calculate vapor pressure of 360 ml m/9 glucose solution. It means ये जो दिया हुआ है ये सॉल्यूशन की हमें वॉल्यूम दी हुई है. m/9 ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 294 केल्विन. दिस इज द टेम्परेचर. दिस इज द मोलैरिटी ऑफ किसकी? ग्लूकोज की हमें मोलैरिटी दी हुई है. m/9 ग्लूकोज सॉल्यूशन. दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. सो वी हैव आल्सो गिवन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. वाटर इसमें सॉल्वेंट का काम कर रहा है. वाटर का वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है 18 mmHg और डेंसिटी भी सॉल्यूशन की गिवन है. वी हैव टू फाइंड द वेपर प्रेशर. रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर पता करनी है. सो फर्स्टली अब इसमें हमें ये पता लग गया दैट वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड ग्लूकोज इज सोल्यूट. ग्लूकोज सोल्यूट और वाटर सॉल्वेंट. सो इस मोलैरिटी से हम ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मोलैरिटी का फॉर्मूला एज यू ऑल नो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में होता है तो फिर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 1/9. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेट अस से NB, वो हमें पता नहीं, इनटू 1000 बिकॉज वॉल्यूम जो है वो हमें मिलीलीटर में गिवन है अपॉन 360. क्रॉस मल्टीप्लाई 360 अपॉन 9 और ये 1000 डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज ग्लूकोज इन दिस केस. ये गया 9 4 जा 36, 4/100. इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कम्स आउट टू बी 0.04. दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको कैसे पता लगता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. अभी मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड आउट कर सकते हो ग्लूकोज का. C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज. 12 6 72 प्लस 12 एंड 16 into 6 96. इट मीन्स 6 10 10 11 180. So this is the molecular mass of glucose. आप यहाँ पे डालो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.04 है. वेट हमें पता नहीं, molecular weight is 180. क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. So WB comes out to be 0.04 into 180. 4/100 into 180. 18 4 जा 72 अपॉन में 10 भी है. इट मीन्स 7.2 ग्राम. दिस इज द वेट ऑफ सोल्यूट. तो वेट ऑफ सोल्यूट आ गया हमारे पास 7.2 ग्राम. नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो गिवन. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन. डेंसिटी एक्चुअल में डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. सो हम यहाँ से सॉल्यूशन का मास पता कर सकते हैं. डेंसिटी हमें दी हुई है 1.2. मास ऑफ सॉल्यूशन लेट से हम ले लेते हैं WS एंड वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है? 360. क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. 1.2 into 360 इज इक्वल टू WS. पॉइंट रिमूव करोगे 10 लगेगा इज इक्वल टू WS. 36 into 12
72 36 2 4। सो 432 ग्राम ये आ गया हमारे पास पूरे सॉल्यूशन का वेट। अभी हमें सॉल्यूशन का भी पता लग गया है वेट, सॉल्यूट का भी पता है, तो अब हम सॉल्वेंट का भी पता लगा सकते हैं। सॉल्वेंट का कैसे पता लग जाएगा? WA विल बी टोटल जो है उसमें से वेट ऑफ सॉल्यूट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 432 माइनस 7.2, 425 424.8। yes, so 424.8 this will be the इतना ग्राम ये आ गया हमारे पास किसका मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज वाटर। अभी सॉल्वेंट का भी मास पता लग गया। दिस आई थिंक यू हैव नोटेड इट डाउन। लेट मी रब दिस। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे को याद है वो थे 0.04। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट, बिकॉज अभी सॉल्वेंट का हमें वेट भी पता लग गया है और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता ही है वाटर का 18 होता है। सो 424.8 अपॉन 18, यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी आपको पता लग जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको ऑलरेडी पता थे। नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आप फाइंड आउट कर लोगे विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आफ्टर दैट यू विल जस्ट पुट दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन this, where P naught A is already given 18 mmHg। तो यहाँ पे आपने वो वैल्यू पुट कर देनी है and you will get your answer. You will get this value P. This is lowering in vapor pressure. So you can solve this and अपना जो आपका आंसर आता है you can put that answer, type that answer in the comment section below. And if you find this video useful, must share this video, press the like button, and if you have not subscribed to this YouTube channel, अभी सब्सक्राइब करो, press the subscribe button and press the notification bell also, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।